atoms are having similar electronegativities, for example, hydrogen molecule is a non-polar molecule. So any molecule which is non-polar will have no distortion of the charge in the molecule. Molecule में कोई shift नहीं होगा electron pair का. Electron pair is shared equally between the two atoms. Okay, but on the other hand, if you take another molecule, for example, अभी मैं एक दूसरा molecule लेने वाला हूँ. Let us take the example of HCl molecule. So when we talk of HCl molecule, two atoms are involved. One is hydrogen, another is chlorine, and they share a pair of electrons between the two. But in such a case, what happens is that the two atoms which are forming the molecule, the two atoms which are sharing the electron pair are dissimilar. They are not similar, they are dissimilar. What is dissimilar? Electronegativity is dissimilar. So as you can see, chlorine is more electronegative. Chlorine is more electronegative, whereas hydrogen is less electronegative. When we say electronegative, what do you mean by electronegativity? That also I would like to tell you. Electronegativity को अगर हमें define करना है, what do you mean by electronegativity? So we can say that it is the tendency or the ability of an atom to pull the shared electron pair towards itself. अगर कोई एटम अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयर किए हुए हैं, अपनी तरफ खींचता है, तो हम बोलते हैं कि उसके पास ये जो टेंडेंसी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एबिलिटी ऑफ एन एटम टू पुल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ. अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की कैपेसिटी किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है. याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किस में होगी? जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे है, यानी ग्रुप 17. ग्रुप 17 only 7 electrons in the last shell, they need only 1 electron, so they are very ready to take 1 electron quickly. खींचने के लिए ज्यादा तैयार है. और जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे होते हैं, they are electropositive. So अगर हाइड्रोजन क्लोरीन को कंपेयर किया जाए, क्लोरीन इज ग्रुप 17, more electronegative. Hydrogen group 1. Hydrogen is actually an exception because it has 1 electron. It can accept 1 electron or donate. So which is easier? Easier is it will donate 1 electron to form a positive ion. So because of this electronegativity difference, the electron pair is not equally shared, and this electron pair is more towards क्लोरीन. ये इलेक्ट्रॉन की जोड़ी इसकी तरफ ज्यादा होती है और इसीलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंडिकेट करता है कि द मॉलिक्यूल इज नाउ अ पोलर मॉलिक्यूल. This is known as a polar molecule. This is what we discussed yesterday, student. I just revised for you. Give me a thumbs up. फिर से एक बार मैंने पढ़ा दिया. पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल. नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे आप पहचानेंगे? मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे. फोन कॉल, F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन एंड Cl फॉर क्लोरीन. फोन कॉल अगर आपको याद रखना है, so they are the most electronegative atoms. ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं 4. इनके सामने अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आएगा तो वो बॉन्ड पोलर बन जाएगी, हाईली पोलर बॉन्ड बन जाएगी. नाउ व्हेन वी
सबने ये चार्ट बना दिया, किसी को कुछ लिखना है प्लीज जल्दी से नोट कर लो, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी फंडामेंटल कंसेप्ट्स। फंडामेंटल कंसेप्ट है ये, इसको भूलना नहीं है आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड पोलर कब होती है, नॉन पोलर कब होती है, व्हाट इज द फीचर ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, व्हाट इज द फीचर ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल। नाउ once we know what is a polar molecule and what is a non-polar molecule, now we will talk about one more aspect of polar. In polar molecule में एक चीज है जिसका नाम है डायपोल मोमेंट। ये पोलैरिटी की भी स्ट्रेंथ होती है, कितनी स्ट्रेंथ होती है हम उसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इज ग्रीक सिंबल म्यू, इसको हम MU म्यू बोलते हैं, म्यू। ये म्यू है। डायपोल मोमेंट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी कितना चार्ज है जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो चार्ज और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। तो HCl मॉलिक्यूल में डायपोल बन गया, डायपोल बन गया मतलब एक साइड पॉजिटिव हो गया, एक साइड नेगेटिव हो गया। याद रखो पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल बनता है, पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल बनता है। पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल, दो पोल्स बनते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल बनता है और उस डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं डायपोल मोमेंट। Dipole moment is defined as the product of the electric charge, or product of the charge, electrostatic charge, and the distance between the center of the positive and the negative charge. तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा d। इन दोनों का प्रोडक्ट आपको देगा डायपोल मोमेंट। इसका मतलब डायपोल मोमेंट किस में ज्यादा रहेगा, जिसमें चार्ज ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कितना स्ट्रेंथ है उसका। चार्ज को भी आपको मालूम है, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम्स। लिख लो, जल्दी से लिख लो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखो और उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज and the distance between the center of the positive and the negative charge. Dipole moment, symbol is mu, symbol is mu. ओके, फॉर्मूला लिख लिया, याद रहेगा फॉर्मूला। अभी हम इसका यूनिट देखेंगे, इसका यूनिट क्या होगा। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमको मिल गया। अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट फाइंड करना है तो मुझे उसके लिए पता होना चाहिए उसका चार्ज कितना है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स। तो अगर मुझे म्यू का फॉर्मूला है Q इंटू डी, तो म्यू का यूनिट क्या होगा, Q का यूनिट है चार्ज, चार्ज का यूनिट है सॉरी कूलम, इसका यूनिट है कूलम। डिस्टेंस हम किस में काउंट करते हैं, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, है ना। तो इस तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, वी कैन गेट द यूनिट फॉर म्यू। म्यू का जो यूनिट है इट विल बी गिवन एज डेबी। इसको हम डेबी कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कूलोम मीटर का मतलब है डेबी। सो कूलोम मीटर इज डेबी। This is how you can remember it. Now we move on to the topic. Dipole moment हो गया, dipole हो गया, polar molecule हो गया, unit of dipole moment हो गया. Now
The next topic is intermolecular interactions. Intermolecular interactions. When the molecules will come near each other, कुछ कुछ होता है, मैंने कल आपको बताया था. तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में पहला हम लोग टाइप पढ़ेंगे, जब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के पास में आएगा तो क्या होगा, तो उसको हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. Let us understand what will happen between one dipole and the other dipole. एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के पास में आएगा तो क्या होगा. डाइपोल का एग्जांपल ले लेते हैं, HCl. ये HCl का मॉलिक्यूल है, पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल बनता है, ये है डाइपोल. एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के पास में आ गया, दूसरा डाइपोल है ये. एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के पास में आएगा, क्या इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा, क्या इनके बीच में कुछ फोर्स एक्ट करेगा, क्या लगता है आपको. विल देयर बी अ इंटरेक्शन? yes. Why there will be an interaction? Because number one, they are close to each other. I told you yesterday, when molecules will come close to each other, there will be interaction. So if the two dipoles come close to each other, दो डाइपोल अगर एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो क्या होगा. बहुत सिंपल है. यू नो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. रूल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द अपोजिट चार्जेस. हमेशा पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है. पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये एक तरह का फोर्स है. तो यहां पर यही होने वाला है इस डाइपोल में. यहां पर आप देखोगे डॉट से मैं बना रहा हूं, कुछ कुछ होता है, इधर कुछ कुछ होने वाला है. क्या होने वाला है, यहां पे इन दोनों के बीच में there will be a force of attraction. So the negative end of one dipole, या नेगेटिव पोल बोलेंगे इसको, मैं बोलूंगा इसको नेगेटिव पोल ऑफ वन डाइपोल will interact with the positive pole of other dipole. दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा, इसी तरह से दूसरा वाला तीसरे के साथ करेगा, तीसरा वाला फोर्थ के साथ करेगा. ओवरऑल आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में there will be a force of attraction. So these molecules will be having a force which will hold them together. जैसे आप कॉलेज में चले गए, चार लोग चले गए कॉलेज में, नए चार लोग मिले, आपस में बातचीत हुई, दोस्ती हो गई, चारों के बीच में ग्रुप बन गया. अब ये चारों ग्रुप बन गए, क्यों, क्योंकि इनका आपस में इंटरेक्शन हुआ, आपकी पहचान हुई, आपकी बातें हुई, इंटरेक्शन के बाद आपकी नजदीकी आ गई, एंड नाउ यू आर फ्रेंड्स. बट देयर मे बी स्टूडेंट्स whom you don't know, जिनसे आपने बात ही नहीं की है. हो सकता है वो आपके ही कॉलेज में आते हो, बट आपका उनसे कोई लेना देना नहीं. नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन, नो रिलेशन. बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन जब होता है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं और नजदीक आते हैं. सो दे आर हेल्ड टुगेदर. इसका असर क्या होता है मैं बताऊंगा, इसका प्रॉपर्टीज पे असर क्या पड़ता है.
ये जो भी हम इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं ये सब इंटरेक्शंस का इफेक्ट होता है उसके बिहेवियर पे। मॉलिक्यूल्स, ये मेरी फिंगर्स अगर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गली हेल्ड रहेंगे, यानी ज्यादा दे विल बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। एक फोर्स होगा जो उनको साथ में रखेगा। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसका मतलब इसको अलग करना आपके लिए मुश्किल होगा। अलग करने का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल को अलग करने का मतलब होता है उसको मेल्ट करना। याद आया कल का कंसेप्ट? जब हम सॉलिड को हीट करते तो लिक्विड होता है, लिक्विड को हीट करते तो गैस होता है। तो मुझे अगर किसी सॉलिड को हीट करके लिक्विड करना है तो मुझे उस सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे उस सॉलिड को, ये एक सॉलिड है, मुझे इसको हीट करके लिक्विड में बनाना है, तो मुझे इसको कितना हीट करना पड़ेगा? ये डिपेंड करता है इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कितने स्ट्रांगली हेल्ड है उसके ऊपर। तो मॉलिक्यूल स्ट्रांगली हेल्ड रहते हैं तो वो जनरली लिक्विड या सॉलिड रहता है, और जब मॉलिक्यूल वीकली हेल्ड होते हैं, ये है मॉलिक्यूल कमजोर है, एक दूसरे के पास में नहीं है, दूर है एक दूसरे से, तो जनरली वो गैस रहता है। तो कोई सब्सटेंस गैस क्यों होगा, गैस होगा या लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं या ऐसे हैं। मॉलिक्यूल ऐसे हैं गैस, मॉलिक्यूल ऐसे हैं लिक्विड या सॉलिड, जितना ज्यादा स्ट्रांग उतना नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे सॉलिड होगा। जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसको उतना ज्यादा गर्म करना पड़ेगा लिक्विड बनाने के लिए, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है जब ये होगा जो अभी आपने पढ़ा। सो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से क्या होता है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से मॉलिक्यूल्स कम क्लोज एंड द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर। तो एक HCl का मॉलिक्यूल इधर है, एक HCl का मॉलिक्यूल इधर है, और दोनों के बीच में आप देख रहे हो एक बंधन है, ये प्यार का बंधन। कौन सा गाना था रे वो? करण अर्जुन। ये बंधन तो प्यार का बंधन है ना? तो वो बंधन से जुड़ जाते हैं लोग। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, भाई और बहन के बीच में रक्षा, राखी एक क्या है? राखी एक फोर्स है, एक मेटाफर है कि मैंने राखी बांधी भाई को, तो मेरा और भाई का एक रिश्ता है। वो आप रिश्ता देख सकते हो क्या? रिश्ता कोई चीज है क्या कि ये देखो ये है रिश्ता? नहीं, इट इज अ फोर्स। वैसे डायपोल भी एक फोर्स होता है, डायपोल मोमेंट भी एक फोर्स होता है। दो मॉलिक्यूल अदृश्य होता है, ये फोर्स अदृश्य है, ऐसे दिखा नहीं सकते ये देखो ये देखो ये चीज ये लो, ऐसा नहीं। इट इज देयर, इट इज देयर between two molecules. And what does that force do? That force keeps the molecules together. So it is like a relation, it is like a relation, it is like a bond, but it is not a bond which is physical. ऐसे नहीं कि भाई देख चीज नहीं है कोई, तो इसलिए मैंने वो डॉट डॉट से दिखाया, वो समझने वाली चीज है। समझो, सबको समझ में आ गया? डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, ठीक है? तो अभी ये डायपोल डायपोल इंटरैक्शन लिख लो, बना दो। एग्जाम्पल HCl मॉलिक्यूल है, इंटर मॉलिक्यूल इंटरेक्शन में पहला टाइप है, और इसके ऊपर शॉर्ट नोट है, आपको नोट्स में से लिखना है। आई होप एवरीबडी हैज गॉट द नोट्स। लिखने का काम आपको घर पे करना है, यू विल डू इट एज एन असाइनमेंट। जनरली 4 पॉइंट्स आर एक्सपेक्टेड, 4 पॉइंट लिखने होते हैं। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता क्या है, किसमें होता है, और ये डायग्राम बना देने का।
Next interaction. Give me a thumbs up if you have finished. Next interaction is between a dipole and an ion. So second interaction को हमने नाम दिया है ion dipole interaction. आयन डायपोल इंटरेक्शन किसके बीच में होगा? तो एक आयन और एक डायपोल. आयन क्या होता है आपको पता होना चाहिए. आयन क्या होता है? आयन का मतलब है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है. अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव आयन बनाता है, और कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन बनाता है. इसको हम आयन बोलते हैं. सबसे सिंपल एग्जांपल आयन का है सोडियम क्लोराइड. आपको सोडियम क्लोराइड सबको मालूम है. NaCl एक्चुअली क्या है? NaCl इज एक्चुअली मेड अप ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयन. Sodium chloride is an ionic compound. Sodium chloride is formed by sodium ion and negative ion chlorine. They are held together by electrostatic force of attraction. तो NaCl जो है, नमक जो है, नमक में क्या होता है? नमक में होते हैं Na प्लस आयंस और क्लोराइड आयंस. नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस साथ में होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं. एंड व्हेन यू पुट दिस इन वाटर, इसको जब आप पानी में डाल देते हो तो ये आयंस अलग हो जाते हैं. अलग हो गए थे पहले से ही. दे आर जस्ट सेपरेटेड. सेपरेट हो गए. पानी ने उसको अलग कर दिया. हाइड्रेशन की ताकत ज्यादा है. इसके लिए किसी चीज को तोड़ना है तो आपको उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. बस यही थियरी है. पानी के साथ में जो उसका हाइड्रेशन, जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा है, और इसलिए वो ताकत, ये जो दोनों के बीच की ताकत है, ये बंधन को तोड़ देती है. NaCl के बीच का बंधन टूट जाता है पानी के अंदर. पानी के अंदर उनका बंधन टूट गया. Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया. अब Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन जो पानी के अंदर है, उनका क्या होगा? उनका इंटरएक्शन होगा किसके साथ? पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो Na प्लस आयंस है और Cl माइनस आयंस है, और हमने सॉल्वेंट लिया है वाटर. वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल. वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है. अब ये वाटर पोलर है ना, पोलर है, इसका मतलब वाटर में होता है डायपोल. इसके अंदर है आपका डायपोल. अब ये वाला डायपोल इस आयंस के साथ इंटरेक्ट करेगा. कैसे इंटरेक्ट करेगा? पॉजिटिव आयन जो है वो वाटर का नेगेटिव हिस्सा, वाटर मॉलिक्यूल को मैं अभी ऐसे बनाऊंगा. ये वाटर मॉलिक्यूल है. वाटर मॉलिक्यूल वी शेप होता है. नेगेटिव हिस्सा जो है, वाटर का नेगेटिव हिस्सा पॉजिटिव आयन के साथ इंटरेक्ट करेगा. समझ में आ रहा है? ये डायपोल है आपका और ये आपका आयन है. डायपोल का नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा. पॉजिटिव आयन को कौन इंटरेक्ट करेगा? पॉजिटिव आयन को डायपोल का नेगेटिव एंड इंटरेक्शन करेगा. चारों तरफ से करेगा. घेर लेगा उसको. सॉरी, ये डॉट डॉट से बनाना है. मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया. डॉट डॉट से बनाना है. बॉन्ड इधर है. तो ये इंटरेक्शन सबको समझ में आ गया?
डायपोल आयन इंटरेक्शन, आयन अगर पॉजिटिव होगा तो डायपोल के साथ इंटरेक्शन करेगा क्योंकि डायपोल में नेगेटिव एंड होता है। वैसे ही नेगेटिव आयन अगर होगा, क्लोरीन आयन होगा, क्लोरीन आयन को डायपोल का कौन सा हिस्सा इंटरेक्शन करेगा, डायपोल उस उल्टा, डायपोल इंटरेक्शन करेगा लेकिन उल्टा इस तरीके से करेगा। अभी डायपोल का पॉजिटिव एंड इसके तरफ आएगा, so positive end of the dipole will interact with the negative part of the ion. ये भी क्या है, इसको भी हम वही बोलेंगे, ये क्या है, आयन है, और ये क्या है, डायपोल है। आयन डायपोल इंटरेक्शन। So ion dipole interaction is the interaction between a positive or a negative ion and a dipole. पॉजिटिव आयन हो सकता है या नेगेटिव आयन हो सकता है, और वो इंटरैक्ट करेगा डायपोल के साथ। सबको समझा? एवरीथिंग क्लियर? थम्सअप दो, थम्सअप दो, थम्सअप दो। किसी को डाउट है तो पूछो। इफ यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। नो डाउट, then you can write it down.